My name is Arpita Gauri. My school name is PCMC English Medium School. So, hi guys. So, welcome back to my channel. Today, I'm going to teach you something new about our students which are taking scholarship. So, I will teach you first unit 1, first lesson of scholarship. Okay. So, let's start from this book, chapter 1, which is our vocabulary word formation. I will tell you about only these 8 parts of speech which here I have write, and I will explain you all the meaning of these. What is a noun, adjective, adverb, verb, pronoun, preposition and conjunction. Okay, so let's start doing our video. So start. Okay. So here I have write something about our scholarship exam. So I think that I should zoom. Okay. So now I think it is perfect. So standard 5th with our Maharashtra board pre-upper primary scholarship examination known as paper 1 digest come unit 1 vocabulary and lesson number 1 word formation. Okay, word formation. So now let's start writing and learning. Okay, so first is our that I have write there are 8 parts of speech. It means in our English language there are 8 parts of speech which are first noun, second adjective, third adverb, fourth verb, fifth pronoun, sixth preposition, seventh conjunction, eighth interjection. Okay, did you understand this all? Now you will think about what are these things which I have highlighted and write here. So we are going to read these things and I will explain one by one. See, first, second, third, fifth, fourth, fifth, sixth, seventh and eighth one I have also write here. I will tell you what is that. Okay, now but first learn about first one, which is a noun. Okay, a noun is a word. See कि यहाँ पे क्या बताया गया है कि एक जो नाउन है वो है एक वर्ड, एक शब्द है. दैट इज द नेम ऑफ अ पर्सन. किसी भी एक व्यक्ति का नाम हो सकता है. प्लेस यानी जगह, जैसे कि मुंबई और अफ्रीका या फिर अमेरिका. सो ये हो गई हमारी जगह के नाम. तो फिर उसको हम नाउन कहते हैं. किसी भी प्राणी का नाम. Animal. What? Animal like dog, cat, they are noun. Okay, and a thing like things like see, it will be remote, it will be pad, it will be our pen. Okay, so like these are things and feelings of anyone. Each called is a noun. Okay, did you understand this? For an example of noun, I will take this one. See, now this is a highlighter. What? This is a highlighter, but which color type of highlighter is this? It is an orange color highlighter. Okay, and it is an orange color highlighter. So orange is our what? Adjective. But first clear that is it is a noun. It is a thing I can touch, I can hold it. So it is a noun. Okay, did you understand that? Now let's move on. An adjective is a word that describe a noun or pronoun or adds meaning it to. Okay, it means जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि ये है एक नाउन, पर एडजेक्टिव क्या करता है? इस नाउन को डिस्क्राइब करता है. जैसे कि दिस इज अ ऑरेंज हाईलाइटर. फिर ये जो ऑरेंज है इसमें का, इस सेंटेंस में का, तो ये ऑरेंज है हमारा व्हाट? ऑरेंज है हमारा ये एडजेक्टिव. समझ में आया? सो फिर एक थिंग है जिसको डिस्क्राइब और इन्फॉर्मेशन क्या दे रहा है कि ये है ये है हाइलाइटर, और इसका जो टोपन है वो है ब्लैक कलर, और ये हाइलाइटर असल में ऑरेंज कलर का है. तो फिर ये इस हाइलाइटर के बारे में मोर इन्फॉर्मेशन जानी है हमने. तो फिर ये मोर इन्फॉर्मेशन जो है
जो कि ब्लैक एंड ऑरेंज हमें दे रहा है, कलर के तौर पे हमें मोर इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो उसको कहते हैं हम एडजेक्टिव. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन. दैट एन एडवर्ब is a word that tells us more about a verb, an adjective or another adverb. See, जैसे कि I am teaching you, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं आपको स्कॉलरशिप का पढ़ा रही हूँ, पर मैं कैसे पढ़ा रही हूँ? बहुत डिटेल में. I am teaching you scholarship in too much detail. तो फिर ये जो डिटेल है वो है हमारा एडवर्ब. ठीक है. अब जैसे कि मैं ऐसा कर सकते हैं कि This orange highlighter is very faint. अब ये ऑरेंज है, हाइलाइटर है, हाइलाइटर एक नाउन है, और दिस ऑरेंज क्या है? एडजेक्टिव है, पर फेंट है. कैसा है ये? उसका वो एक नाउन है, वो एक एडजेक्टिव भी है, पर ये कैसा है? एकदम फेंट चलता है, ये फेंट चलता है, इसलिए ये है हमारा एडवर्ब. ठीक है. जैसे कि आपको समझ में आया. आई होप दैट यू शुड अंडरस्टैंड दिस. सो नाउ लेट्स मूव ऑन. फोर्थ वन है अ वर्ब. ओके, तो फोर्थ वन है हमारा वर्ब. इज अ वर्ड दैट टेल्स अस व्हाट अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग हैज और इज डूइंग. इट डिनोट्स एक्शन, स्टेट, बीन और पोजीशन. सो एक वर्ब है जो कि हमें बताता है कि एक जो थिंग है, एक नाउन है, वो क्या कर रहा है. ठीक है. अब मैं हूँ, मेरा नाम है अर्पिता और मैं आपको पढ़ा रही हूँ. माय नेम इज़ अर्पिता एंड आई एम टीचिंग यू. सो मैं कौन हूँ? मैं एक नाउन हूँ, क्योंकि मैं एक व्यक्ति का नाम है. मैं एक व्यक्ति हूँ, तो इसलिए मैं एक नाउन हूँ, पर मैं आपको पढ़ा रही हूँ. पढ़ाना एक क्रिया कर रही हूँ, मैं पढ़ाने की क्रिया कर रही हूँ, तो पढ़ाना ये हो गया हमारा वर्ब. ओके, सो मुझे ऐसा लगता है कि आपको वर्ब की डेफिनेशन क्लियर है. और नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं कि हमारा आगे का टॉपिक है फिफ्थ. अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन. आप देखो कि प्रोनाउन है, एक शब्द है जो कि नाउन के बिना हम यूज़ कर सकते हैं. यानी नाउन के सिवाय हम क्या यूज़ कर सकते हैं? प्रोनाउन यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि आई एम अर्पिता, अर्पिता इज़ टीचिंग यू, अर्पिता इज़ वेरी गुड, अर्पिता इज़ स्मार्ट गर्ल. ये कैसे लग रहा है? रॉन्ग लग रहा है ना. ऐसा मैं बोल सकती हूँ कि आई एम अर्पिता, आई क्या बोल सकती हूँ मैं? आई. या फिर अगर किसी का नाम है शर्वरी, सो फिर मैं बोलूँगी शी इज़ अ शर्वरी, शी इज़. तो फिर ये शी क्या होगा? मेरा प्रोनाउन होगा. ठीक है. आई होप दैट आपको समझ में आया. नाउ नेक्स्ट है हमारा प्रीपोजिशन. सो 2 minutes. ओके, दिस इज आवर प्रीपोजिशन. इज अ वर्ड दैट शोज द रिलेशन बिटवीन अ वर्ड एंड अ नाउन or pronoun that comes after it. प्रीपोजिशन एक वर्ड है जो कि रिलेशन दिखाता है. जैसे कि मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि मैं आपको डिटेल में समझाते मैं आपको ये पढ़ा भी रही हूँ. या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं खेलते खेलते हम पढ़ भी रहे हैं. या फिर देखो हम ऐसे बोल सकते हैं कि सी आई टेक वन हाइलाइटर एंड द अदर हाइलाइटर फॉर माई एग्ज़ाम. फिर ये जो अदर है, ओके, ये जो अदर है, तो फिर वो हमें एक रिलेशन दिखा रहा है, एक प्लेस दिखा रहा है जिसका रिलेशन है कि एक है हाइलाइटर और एक दूसरा भी है. ठीक है. कंजक्शन भी सेम है. कंजक्शन की डेफिनेशन, अ लिंकिंग वर्ड, इट जॉइंस टू वर्ड्स, पेयर्स और सेंटेंस. फिर ये देखिए, ये अब बड़ा इम्पोर्टेंट है कि क्या है. कंजक्शन दिखा रहा है, लिंकिंग वर्ड है, और वो जॉइन करता है 2 वाक्यों को. जैसे कि जैसे कि हम बोल सकते हैं हम खाना खाते खाते टीवी भी देख रहे हैं. वी आर ईटिंग एंड ऑल्सो वॉचिंग द टीवी. सो फिर ये जो एंड है वो हुआ हमारा कंजक्शन. ठीक है. ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे कि इफ़, बिटवीन, अंडर. सो ये सारे प्रीपोजिशन, कंजक्शन, बहुत सारे वर्ड है.
an interjection. Now interjection is a word that expresses sudden feeling. जैसे कि अगर मैं चल रही हूँ और अगर मेरे पैर को कुछ लग गया या फिर कुछ घुस गया मेरे पैर में, तो मैं क्या बोलूँगी, आओ, इट हर्ट्स मी, ओ, आउच। ये जो मेरे साउंड्स है वो मेरे फीलिंग्स है, और वो सडन फीलिंग है मेरा, क्योंकि मुझे अभी लगा और मैंने अभी जल्दी से चिल्लाया कि ओ, आउच। सो ये है हमारा इंटरजेक्शन। सो मुझे ऐसे लगता है कि आपको ये समझ में आया होगा। सो टिल दैट प्लीज़ थैंक यू, और अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट हमारा टॉपिक, या फिर मैं इसके ही सेंटेंसेस आपको यहाँ पे लिख के आपको समझा के मैं इसके ही सेंटेंस आपको इसके ही बता दूंगी, ठीक है। सो फिर टिल दैट thank you, and I am doing very hard working for you. Please like, please share, okay? Thank you.